اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کی تقریب ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ مارچ 2022 سے ہونے والے سیاسی ایونٹس کی وجہ سے سیاسی مقدمات عدالتوں میں آئے۔ اس کیس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار بھی جانبدارانہ رہا۔ سپریم کورٹ آئین، عدلیہ، افواج پاکستان اور الیکشن کمیشن کا بھرپور آئینی تحفظ کرنے میں پرعزم ہے۔ پارلیمنٹ، اعلیٰ اور ماتحت عدلیہ، آڈیٹر جنرل اور سروسز آف پاکستان کا بھی تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اگر آئین یا اس کے آئینی اداروں کو نیچا دکھایا گیا یا ان کی خلاف ورزی کی گئی یا ان پر حملہ کیا گیا تو عدالت اداروں کے آئینی تحفظ کے لیے ذرا ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوگی۔ نئے عدالتی سال کی تقریب میں اعلیٰ عدلیہ سمیت ڈپٹی اٹارنی جنرل، نمائندہ پاکستان بار کونسل، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی شریک ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر ہوا۔ اس مقدمے میں وفاق نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی جو قانون کے مطابق نہ تھی، جبکہ مقدمے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار بھی جانبدارانہ رہا۔ دوست مزاری کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے پر سیاسی جماعتوں نے سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کے فیصلے کا رد عمل ججز تقرری کے لیے منعقدہ اجلاس میں سامنے آیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 5 اہم اور قابل ججز کو نامزد کیا گیا تھا۔ نامزدگی کے حق میں 6 کے مقابلے میں 4 ووٹ آئے۔ مارچ 2022 سے ہونے والے سیاسی ایونٹس کی وجہ سے سیاسی مقدمات عدالتوں میں آئے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ پر ججز کی مشاورت سے از خود نوٹس لیا اور 5 دن سماعت کر کے رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور فیصلہ بھی 3 دن میں سنایا گیا۔ تقریب سے خطاب میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بھور نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی میعاد کے تعین کا کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کی بات کریں تو سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ سندھ کے کئی اضلاع میں سیلاب کا پہلا پانی نکلا نہیں اور بادل پھر برس پڑے۔ دادو، ٹھٹھا، بدین، عمرکوٹ، میرپور خاص، ٹنڈو محمد خان اور ساماروں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ زمینی راستے پھر بند ہونے لگے۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ تاریخ کے بدترین سیلاب نے سندھ کا نقشہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ لاکھوں متاثرین سڑکوں اور خیمہ بستیوں میں بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ منچر جھیل کا پانی بھی کم نہ ہو سکا۔ مزید 10 دیہات زیر آب آ گئے۔ کم بھر میں 2 بچے سیلاب میں بہہ گئے۔ پہلے سے جمع پانی نکل نہیں پایا، بادل پھر برس پڑے۔ سندھ کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش نے سیلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ دادو، ٹھٹھا، بدین، عمرکوٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش سے حفاظتی بچاؤ بندوں پر پناہ لینے والے متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ میرپور خاص اور ساماروں میں بھی وقفے سے بارش۔ صوبے میں سیلابی صورتحال برقرار۔ منچر جھیل کا پانی چھوڑنے کے باعث کوٹری ویراشور دریا میں اونچے درجے کا سیلاب۔ لاکھوں متاثرین سڑکوں اور خیمہ بستیوں میں بے یار و مددگار۔ پانی سے بچ جانے والے بھوک کا شکار بن رہے ہیں۔ بھان سعید آباد میں ریلیف کیمپ میں 12 سالہ لڑکی بھوک سے جاں بحق ہو گئی۔ مورو میں سیلابی پانی کم ہونے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن گھروں کی بحالی اور اشیاء خوردونوش کی قلت کا سامنا ہے۔ ٹھٹھا اور سجاول کے قریب دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، متعدد آبادیاں زیر آب۔ قمبر میں 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق، ایک بچی بھی دم توڑ گئی۔ ادھر دادو میں سیلاب کے باعث گریڈ اسٹیشن کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے پاک فوج کی جانب سے سول انتظامیہ، رینجرز اور مقامی افراد کی مدد سے بند ہٹا دیا گیا ہے۔ بند ہٹانے کا مقصد بجلی کے گریڈ اسٹیشن کو سیلابی پانی سے بچانا ہے۔ دادو کی سب سے اہم بجلی فراہم کرنے والے گریڈ اسٹیشن کو انتہائی محنت اور کاوش کے بعد محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے سیلاب میں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے، جبکہ کئی سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ مختلف علاقوں میں ٹریفک جام ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ 14 یا 15 ستمبر تک جاری رہ سکتا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے سرفراز قائم خانی کی اس رپورٹ میں۔
कराची में गहरे बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से गर्मी में कमी हो गई। बारिश से सपूरा चौरंगी, नीपा, यूनिवर्सिटी रोड, पुरानी सब्जी मंडी, लियाकताबाद, नाजाबाद, सदर, गवर्नर हाउस समेत एतराफ की सड़कें ज़ेरे आब। यूनिवर्सिटी रोड पर मुतअद्दिद मुकामात पर ट्रैफिक जाम से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिशों का ये सिलसिला 14 से 15 सितंबर तक जारी रह सकता है। कराची में तो सिर्फ कल तक है बारिश, लाइट रेन है, और उसके बाद कोई इसका ऐसा लंबा सिलसिला नहीं है यहाँ पर। अलबत्ता दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स जो मैंने आपके सामने नाम लिए, थरपारकर, उमरकोट, बदीन और ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट और खैरपुर, संगड़, उन डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आज भी, कल भी, परसों भी वक्फे से बारिश कहीं हल्की कहीं दरमियानी इस टाइप की रहेगी। शहर कायद में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। जिला दादू में सैलाब से मुतासर सैकड़ों अफराद हैदराबाद में कायम रिलीफ कैंप में बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। मुतासरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें इलाज की सहूलत तक मैसर नहीं है। मज़ीद बताएंगे नासिर शेख। जी, दादू, जोही और महड़ से जो है सैलाब और बारिश से मुतासिर होने वाले 400 के करीब अफराद, जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, यहाँ हैदराबाद की वहदत कॉलोनी के एक स्कूल में इन्हें रिलीफ कैंप में रखा गया है। यहाँ पर जो है मौजूद जो खातून हैं उनसे मालूम करते हैं। सहूलियत को कोई भी नहीं है, खाना भी नहीं मिलता है। एक माना सारेरी में एक दफ़ा बिरयानी आती है। ये बच्चों बीमार है, बिस्तरा भी नहीं है, खाने के साथ कुछ भी नहीं है। और सैलाब आ गया, बहुत मजबूर है, सरकार के साथ कोई भी संग मिला था नहीं। यहाँ हमने बहुत सारे मुतासरीन से बात की है। वो कहते हैं कि हमें जो है ना सोने के लिए पलंग दिया गया है, ना हमें बिस्तर है, मच्छरों की बहुतात है। यहाँ जो है वो बड़ी तादाद में बच्चे बीमार हैं, मुसलसल पानी में रहने की वजह से वबाई अमराज का शिकार हैं। यहाँ कोई इलाज की भी सहूलियत नहीं है। जी, बदीन में LBOD नाले में पानी का दबाव बढ़ गया। कमिश्नर हैदराबाद ने LBOD की RD 211 से कट लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पानी से मुतासर होने वाले गांव के मकीनों ने RD 211 पर धरना दे दिया है। कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुर्तज़ा मेहमन से। मुर्तज़ा, जिन लोगों ने धरना दिया है इनका क्या मुतालबा है? जी, सिंध भर का जो सैलाबी पानी है वो LBOD में दाखिल हो गया है। LBOD के ऊपर जो है पानी का दबाव बढ़ गया है। इस वजह से सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि LBOD की 211 RD पर जो है उसको कट लगा के इस पानी को जो है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन और तहसील तंडो भागों की तरफ इसका रुख कर दिया जाए। और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त कमिश्नर ने जो आर्डर जारी किया है, जिसके ऊपर बदीन डिप्टी कमिश्नर और महकमा इनार का जो सारे वहाँ पर RD 211 पर पुलिस बड़ी नफरी पहुंच चुकी है, लेकिन वहाँ के सैकड़ों लोगों ने धरना देकर उनका रास्ता रोक दिया है। उन लोगों का कहना यह है कि LBOD जो है ले रहा है, जो समंदर में पानी जा रहा है, फिर इस तरफ जो है कट लगाने का कोई मकसद ही नहीं है। और यहाँ मुर्तज़ा मेमन अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। दीन को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाले शैतान से अपना ईमान और मुल्क बचाएं। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर इमरान खान पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब से दावत इस्लामी के मरकजी रहनुमा हाजी अब्दुल हबीब अतारी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात हुई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। और कराची समेत अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन होने लगा है। आवाम परेशान है। कराची में 1 किलो आटा 120 रुपए का हो गया है। लाहौर में दुकानों से आटा गायब है। जहां दस्तयाब है वहां भी 100 रुपए किलो से जायद में फरोख्त हो रहा है। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में 2050 रुपए का हो गया है। सिंध हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 रुपए फी मन करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आटे की कीमत में इजाफा हो जाएगा। मुल्क में कहीं भी शहरियों को सरकारी निर्ख पर आटा नहीं मिल रहा। जहां मौजूद है वहां दिन भर लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। जब आटा महंगा हो गया है तो उससे लोगों को लोग अभी अपनी ज़िंदगी अजीरन की तरह मुश्किल बसर कर रहे हैं। अभी बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अभी जो सर 5200 था, अभी 100-200 और बढ़ा है।
वो जो 20 किलो था उसको 1900 किया है, पहले 1400 का था, अभी 1900 का है। भाई हम ये मुतालबा करना चाहेंगे फिर दुकान पे कम से कम 100 थैला तो कम से कम लगना चाहिए ना, जो आदमी आवाम इस तरह खड़े ना हो। मैं वो मुलाजिम आदमी हूँ, 10,000 का सैलरी है मेरी, 8 बजे का 2 घंटे हो गए आटे के इंतज़ार में खड़ा हूँ, या खुदकुशी करूँ या मैं आटा खाऊँ या बच्चों को खिलाऊँ, क्या करूँ? मिला आटा ऐसे ही खड़े तुम्हारे सामने देख रहे हैं, कभी आते होता नहीं है, कभी देते नहीं है, गट्टू के सवा देते भगा देते। 15 किलो वाला ये 2 दिनों में इस पे 60 रुपये बढ़ रहे और सरकारी आटा मिल नहीं रहा। 20 किलो वाला आटा है तो वो तो मिलता है उसी रेट पे, लेकिन ये दूसरा जो 15 किलो वाला आटा है वो दिन ब दिन उसका इजाफा होता जा रहा है। आटा पहले से काफ़ी महंगा है, अभी और दिन पर दिन उसको बढ़ा रहे, तो हम गरीब लोग हैं। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद का कहना है कि गंदम की कीमत 2000 से 4000 मन मुकर्रर करना गरीब को घास खाने पर मजबूर करना है। सर्दियों से पहले ही गैस की शॉर्टफॉल शुरू हो गई है। UN के सेक्रेटरी जनरल को भी चंदे की ईमानदारी की यकीन दहानी कराई जा रही है। ना कोई गैर मुल्की इमदाद मिली, ना मुल्की इमदाद की साख है। इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर भी पाबंदी है। मिफ्ता के रोने से मईशत ठीक नहीं होगी। UN का खिताब एक बहाना है, असल में नवाज शरीफ को मनाना है। नून और शीन की सियासत आर पार हो जाएगी और PDM इलेक्शन से पहले ही टूट जाएगी। वेलकम बैक। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने मुल्क में पैरासिटामोल की किल्लत के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। कहा पैरासिटामोल का फार्मूला 50 से ज्यादा अकसाम में मौजूद है। लोग किसी एक ब्रांड पर ज्यादा इन्हिसार करते और इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त कहीं भी पैरासिटामोल दवा की कोई कमी नहीं है। कुछ अफराद बगैर सोचे समझे अद्वियात की कमी का प्रोपेगेंडा करके मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सियासतदान सियासत की बजाय सैलाब मुतासरीन के लिए काम करें। अब कोई ट्वीट भी कर देता है कि जी देखें ये फलां दवा, अब क्या हम किसी ब्रांड की पॉलिटिशियन मार्केटिंग में लग गए? ये ट्वीट भी आपने उठा के देख लिया, उसमें जो तस्वीर थी और जिस ब्रांड का जिक्र किया गया, आप सब जानते हैं कि वो एक जेनरिक है। पैरासिटामोल ये आपके सामने मौजूद है कोई 50 से ज्यादा अकसाम में। पैरासिटामोल कोई कहे कम हो गया है तो ये आपके सामने मौजूद है। कोई एक आध ब्रांड अंडर स्ट्रेस आता है, लेकिन हम अपने तमाम जो हमारे वसाइल हैं उसको बरोकार लाए हुए। 31 दिसंबर 2018 को 494 की दवाओं की कीमतों में 27% इजाफा किया गया। खान साहब आपने किया, क्यानी ने किया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की सरबराही में फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासिरीन को घर बनाकर देंगे। इस सिलसिले में FGRF के ताउन से घर तामीर किए जाएंगे। सैलाब मुतासिरीन को घरों की तामीर के लिए 4 लाख रुपए की माली इमदाद देंगे। तबाह होने वाले कच्चे घरों की तामीर के लिए 2 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनाटोबा कनाडा के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन की फंड रेजिंग मुहिम कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों और दीगर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कनाडा में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि मुसीबत की इस घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्मों का जज्बा खैर सगाली। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड रेजिंग मुहिम का आगाज। कनाडा के शहर विनिपेग में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड इकट्ठा करने की एक तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन की रीजनल मैनेजर इकरा तारिक और समाजी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। इस मौके पर इस्लामिक पेंटिंग भी फरोख्त की गई। तकरीब से खिताब में शुरका का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी सैलाब से मुतासर अपने भाइयों के साथ खड़े हैं और इन्हें ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर में डेंगू मच्छर का फैलाव बढ़ गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने एतराफ़ करते हुए मरासला लिख दिया है। मरासले के मतन के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने डेंगू मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम में लगाने से रोकने की सिफारिश कर दी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मियां नवीद से। नवीद, क्या सूरत हाल है? जी वैस बिल्कुल, डेंगू के केसेस बतदरीज जो है उसमें इजाफा हो रहा है और रिपोर्टेड केस सामने आ रहे हैं तस्दीकशुदा। यही वजह है कि SCO हेल्थ लाहौर ने जो है वो तमाम DDOH के नाम रास्ता जारी किया है कि वो डेंगू वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन मुहिम में ना लगाया जाए और फौरी तौर पर जो है वो उनको सिर्फ डेंगू मुहिम में भी काम करने दिया जाए ताकि डेंगू के केसेस के ऊपर और डेंगू पर काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मियां नवीद आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।